Hello student, welcome to our English class. We are going to start our poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. First of all, let's know about the poet. Stephen Spender was an English essayist and poet. He left the University College Oxford without completing his degree and went to Berlin in 1930. He took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. So, this is about the poet. Now I am going to tell you about poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stunted, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. It means the poet describes the pitiable condition of the slum school children. They are sitting in a classroom in a slum which is far away from the violent waves of the sea. Gusty means stormy. Their hair are scattered around their pale and withered faces like the rootless wild plants. One tall girl is sitting depressed with her head bowed down, while there is a lean and thin boy like a paper with eyes like rats. His growth is blocked and he looks undeveloped. He inherits twisted bones from his father. From his desk he is telling the naughty disease of his father. It means in this stanza, poet wants to describe miserable condition of the school children, slum school children. वो क्या है, बैठे हुए हैं, स्लम में बैठे हुए हैं क्लासरूम में एक में, और क्या है, जो वायलेंट वेव्स हैं सी की उनसे काफ़ी दूर हैं, यानी समुद्र के आसपास नहीं हैं, और उनके हेयर क्या हैं, स्कैटर्ड हो गए हैं, बिखर गए हैं, और उनके फेसेस कैसे हैं, पेल यानी पीले पड़ गए हैं, और उनके जो हेयर हैं वो रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स की तरह हैं, बिखरे हुए। और एक टॉल गर्ल बैठी हुई है डिप्रेस्ड हेड डाउन करके, और जो कि क्या है, जबकि लीन और एक दुबला पतला जो लड़का है वो कैसा दिखाई दे रहा है, पेपर की तरह दिखाई दे रहा है, और उसकी आइज़ कैसी हैं, रेड की तरह उसकी आइज़ हैं, और उसकी ग्रोथ क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, रुक चुकी है, और वो बिल्कुल क्या लग रहा है, अनडेवलप्ड लग रहा है। और उसने क्या ले रखा है, एक ट्विस्टेड बोन की जो डिजीज़ है, नार्लेट डिजीज़, ट्विस्टेड बोन यानी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं जिसमें, वो अपने फादर से क्या ली है, विरासत में ली है, और अपने डेस्क के ऊपर से ही बैठ के वो क्या बता रहा है इस बारे में, अपने फादर की नॉटी डिजीज़ के बारे में। नॉट मीन्स गांठ लग जाना, यानी शरीर के अंदर, बोन्स के अंदर गांठ लग जाती हैं ऐसा लगता है, तो उस डिजीज़ के बारे में वो लड़का बता रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room. Other than this, अब क्या है, another sweet and young boy is sitting at the back of the class, which is dim. क्लास में पीछे बैठा हुआ है, और वो कैसी क्लास है, डिम क्लास है, अंधेरा है, और लड़का कैसा है, स्वीट और यंग बॉय है, और ही इज़ अननोटिस्ड बाय अदर, दूसरे उसको देख नहीं पा रहे, यानी छिपके वो पीछे बैठा हुआ है दूसरों की नज़रों से। और हिज आइज आर ड्रीमिंग द गेम ऑफ द स्क्वायरल प्लेइंग इन द होलो ऑफ द ट्री, और उसकी आंखें सपना देख रही हैं, किस चीज़ का सपना देख रही हैं, जो स्क्वायरल गिलहरी होती है वो प्ले कर रही है एक होलो ट्री के अंदर, उसको वो देख रही हैं उसकी आंखें। इन एडिशन टू दीज ड्रीम्स, इन सपनों के साथ साथ ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ अनदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस अदर देन हिज डल एंड डिंगी क्लासरूम। अब वो इस ड्रीम के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में भी ड्रीम ले रहा है, जो डल और उसके डिंगी क्लासरूम से अलग है, इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में सोच रहा है। The school slum children
आर लीडिंग एंड लिविंग अ मिजरेबल स्टेट ऑफ अफेयर विदाउट प्रॉपर एक्सेस टू एजुकेशन, यानी वो एक पिटिएबल कंडीशन में जी रहे हैं और एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं, यानी उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled, flowery, Tyrol Valley, open-handed map, awarding the world its world. It means the classroom wall are painted in unpleasant cream color. अब cream color की unpleasant जो wall हैं classroom की हैं, और the gifts given as donation and the pictures of Shakespeare had are hung as well as decorated on these walls. It means क्या है, जो गिफ्ट्स डोनेशन के रूप में दिए गए हैं, कौन क्या है उसमें, शेक्सपियर की जो पिक्चर है या हेड है वो क्या है उन वॉल्स के ऊपर लगी हुई है उनको डेकोरेट करने के लिए. बट ऑल दिस थिंग्स आर यूजलेस फॉर दीज स्लम चिल्ड्रन. लेकिन सारी की सारी ये चीज़ें क्या है उन बच्चों के लिए, स्लम चिल्ड्रन के लिए यूजलेस हैं. इन द मॉर्निंग स्काई इज क्लाउडलेस. डॉन मीन्स मॉर्निंग. अब क्या है, मॉर्निंग में जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, क्लाउडलेस है, कोई भी बादल उसमें दिखाई नहीं देते. द डोम्स ऑफ सिविलाइज्ड, डोम सिविलाइज मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर शाइनिंग इन ऑल द सिटीज़. जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें क्या है, बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं. बट इन द वैली ऑफ टायरल चर्च बेल्स, फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स प्रिवेल देयर. अब क्या है, जो टायरल वैली है वहाँ पे क्या है, जो चर्च की बेल सुनाई देती है या फ्रेगनेंस है वो चीज़ें फैली हुई हैं. और द पोइट पॉइंट्स आउट द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द पीपल इन पावर अकॉर्डिंग टू देयर विल. अब क्या है कि जो पोइट बताता है कि मैप, इस वर्ल्ड के अंदर जो मैप बना हुआ है वो कैसा है, उन लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है जो पावर में है, जिनके पास ताकत है और अपनी अकॉर्डिंग टू, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी विल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये किया हुआ है. और उनको कोई केयर नहीं है कि स्लम स्कूल चिल्ड्रन की कोई केयर नहीं है. और वर्ल्ड मैप इज़ मीनिंगलेस फॉर स्लम चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव बीन इग्नोर्ड कम्प्लीटली. क्योंकि क्या है, जो वर्ल्ड मैप है वो स्लम चिल्ड्रन के लिए मीनिंगलेस हैं क्योंकि उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़, not this world, our world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. It means the powerful and rich imposes their will in preparing the world map. अपनी क्या है, विशेस के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करते हैं वर्ल्ड मैप. फॉर दीज चिल्ड्रंस दिस वर्ल्ड मैप इज़ यूजलेस. देयर वर्ल्ड इज़ द विंडो इन विच दे आर ड्वेलिंग. उनके लिए क्या है, वर्ल्ड क्या है, वो विंडो है जिनसे वो बाहर देखते हैं. देयर ओन डर्टी एंड अगली विंडोज़ एज वेल एज अनहाइजीनिक सराउंडिंग फॉर्म देयर वर्ल्ड. अब क्या है, उनकी जो विंडोज़ हैं डर्टी और अगली, और वो अनहाइजीनिक भी है, साथ साथ वही उनका वर्ल्ड है. दे हैव नो फ्यूचर रादर इट इज़ डोमिनेटेड बाय द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी. उनका कोई फ्यूचर नहीं है. उनका फ्यूचर क्या है, जो फॉग है, अनसर्टेनिटी की जो फॉग है, जो अनिश्चितता है, उससे उनका फ्यूचर पेंट किया गया है, उनका भविष्य उससे पेंट किया गया है. They are doomed to live in the narrow and crumpled hole. अब क्या है, उन्हें कहाँ रहना पड़ता है, नैरो स्ट्रीट्स के अंदर रहना पड़ता है और क्रैम्प्ड होल, नैरो होल्स के अंदर, यानी थोड़ी थोड़ी जगह के अंदर उनको रहना पड़ता है. They are the victim of narrow streets and cannot see the outside world. अब वो क्या है, उसी स्ट्रीट पे रहते हैं, नैरो स्ट्रीट पे, और बाहर का जो संसार है उसको नहीं देख सकते हैं. देयर स्ट्रीट्स आर क्लोज्ड बाय द ब्लू स्काई. और उनका जो
स्ट्रीट है उनकी वो क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है ब्लू स्काई से। देयर वर्ल्ड इज़ मच फार अवे फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स, और उनका संसार बहुत दूर है, किनसे, रिवर्स से, केप से, स्टार से। इन अ वे देयर फेट इज़ क्लोज्ड इन नैरो सराउंडिंग्स, इस तरीके से क्या है, उनका जो फेट है, भाग्य है, वो किस में, नैरो सराउंडिंग्स तक ही सीमित रह गया है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन and love tempting them to steal for lives that slyly turn into their cramped holes from fog to endless night. It means it will be wicked. Wicked means दुष्ट या clever. To talk of Shakespeare to these poor children. क्या है, शेक्सपियर की बात करना इन गरीब बच्चों के लिए क्या है, गलत है, यानी उनको कुछ समझ नहीं आती शेक्सपियर की बातें। Showing them the map as an example of the world will be a bad example, और उनको वर्ल्ड मैप दिखाया जा रहा है तो वो क्या है, उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बैड एग्जाम्पल है। The whole world is full of attractive things like ships, sun and human love, so these children are tempted to steal them from this world। और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो अट्रैक्टिव थिंग्स, जो कि कौन सी हैं, शिप्स हैं, सन है, ह्यूमन लव है, इनसे पूरा का पूरा भरी हुई है, लेकिन वो बच्चे क्या चाहते हैं, उस वर्ल्ड से उनको चुरा लेना चाहते हैं या अट्रैक्ट करते हैं उनकी तरफ। दे स्पेंड देयर लाइफ सीक्रेटली इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड मीन्स नैरो, वो क्या है, अपनी लाइफ इन्हीं जगहों पे जो नैरो स्ट्रीट्स हैं या नैरो स्लम एरिया है उनमें ही क्या है, गुजार देते हैं। एंड फॉर देम लाइफ इज़ ऑल फॉगी एंड एंडलेस नाइट, और उनके लिए वो क्या है, पूरी की पूरी लाइफ फॉगी है, एक धुंध भरी है, अनसर्टेन है, और एंडलेस नाइट है। दे विल लिव एंड डाई इन दीज स्लम सराउंडिंग्स, उन्हें यहीं पे जीना होगा, इन्हीं स्लम सराउंडिंग में जीना होगा और मरना भी होगा। On their slag heap, these children wear skins peppered through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as dome. Blot means stain, dhabba. Slag means waste material. Heap means pile. Pile means ढेर. Pep means झाँकना. It means the slum children live and roam on the heap of waste. जो slum children हैं वो क्या है, जो waste का heap होता है, ढेर होता है, उनके ऊपर ही घूमते फिरते हैं और रहते हैं। Their bones can be seen through their skins, और वो इतने दुबले पतले होते हैं, स्किनी होते हैं कि जो उनकी बोन्स हैं वो भी दिखाई देती है उनकी स्किन से। These are very thin, lean and weak, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, लीन होते हैं, वीक होते हैं। They wear steel spectacles that have mended glass, और वो क्या पहनते हैं, स्टील स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, और उनके ग्लासेस कैसे होते हैं, मेंडेड। मेंडेड मीन्स ठीक किए हुए, जैसे टूट जाने के बाद उसको ठीक किया जाता है, सुधारा जाता है, उसको मेंडेड बोलते हैं। These glasses look like the broken bits of bottle on the stones, और वो कैसे दिखाई देते हैं वो ग्लासेस, जैसे मानो जो स्टोन है उसके ऊपर बॉटल के जो पीसेस होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो ऐसे लगते हैं उनके स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस। दे स्टिक टू डर्टी एंड फॉगी स्लम्स, वो वहीं रहते हैं। दे पास ऑल देयर टाइम एंड स्पेस देयर, वहीं अपना टाइम गुजारते हैं वो। दीज स्लम्स आर द लिविंग हेल्स फॉर दीज चिल्ड्रन, और ये स्लम उनके लिए एक हेल की तरह होती है इन बच्चों के लिए। सो द मैप ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय पावरफुल एंड रिच इज़ ऑफ नो यूज़ एज दे आर टू लिव विद इन द लिविंग हेल्स। इट मीन्स जो मैप जो बनाए हैं रिच पीपल ने या पावरफुल पर्सन ने जो मैप बनाए हैं, अगर ऐसी लिविंग हेल के साथ उन्हें रहना पड़ रहा है, जो स्लम्स में रहते हैं उनके साथ रहना पड़ रहा है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। These hells are a blot on a civilized world. Blot means धब्बा,
और ये क्या है, ये हेल क्या है, उनके ऊपर जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उनके ऊपर एक ब्लॉट है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacomb, break, open till they break the town, and show the children green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into the books. The white and green leaves open, history is theirs, whose language is the sun. The poet addresses these lines to school governor, teachers, inspectors, and visitors to fulfill the gap of this difference. कि इसको ख़त्म करना चाहिए, इस गैप को जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड की और स्लम चिल्ड्रन के बीच में है। He urges them to pay deep attention to the world of slum children and make their world as their own so that they may also live in this beautiful world. Because the unsuitable environment of slums has closed all their gates of progress. अब क्या है, वो पोइट चाहता है उनसे, किससे, गवर्नर से, टीचर से, इंस्पेक्टर से, या विजिटर आते हैं स्कूल में उनसे, कि जो स्लम चिल्ड्रन की तरफ ध्यान दो और उनको क्या है, उनके वर्ल्ड को भी इतना ही सुंदर बनाओ जितना आपका है, ताकि वो क्या कर सकें, एक इट मीन्स देयर लाइव्स आर स्पेंड इन द फोगी स्ट्रीट दैट आर अ काइंड ऑफ कैटाकॉम। वो कैसी लाइफ जीते हैं, स्ट्रीट में, नैरो स्ट्रीट में जीते हैं, फोगी स्ट्रीट में जीते हैं, जो कैटाकॉम की तरह है। कैटाकॉम क्या होता है, एक डेड बॉडीज़ को रखने के लिए एंशियंट टाइम में अंडरग्राउंड टनल होती थी। He asked the educated world to break these bonds of obstacles from these slum children and show them the green field, the outer world of progress for their development. It means वो educated world को बोलते हैं, ये जो obstacles हैं, अड़चने हैं, इनको सबको तोड़ दो slum children के लिए, और उनको क्या है, green fields शो करो, दिखाओ, और आउटर वर्ल्ड में ले जाओ जहाँ क्या है, डेवलपमेंट है उनकी। He further asked these civilized people to let the world of slum children extended to the blue sky waves rising over the golden sands, और उन बच्चों को कहाँ लेके जाओ, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में लेके जाओ जहाँ पे क्या है, स्लम चिल्ड्रंस के सामने क्या हो, ब्लू स्काई हो, लहराता हुआ ब्लू स्काई हो, और वो कहाँ हो, गोल्डन सैंड के ऊपर खड़े हों, या फिर गोल्डन सैंड उन्हें दिखाई दे। Let the pages of wisdom be open for them, and their tongues may run freely on the books like the educated masses. अब क्या है, उनके लिए विजडम के जो पेजेस है, विजडम मीन्स बुद्धिमता, उसके पेजेस को ओपन कर दो और उनकी टंग्स को फ्री कर दो कि वो बुक्स पढ़ सकें, किसकी तरह, एजुकेटेड मास की तरह, यानी एजुकेटेड पीपल की तरह। Only people of such society create or make history whose language has the warmth and power of sun. It means सिर्फ क्या है, हिस्ट्री कौन क्रिएट कर सकता है, इसी तरह की सोसाइटी क्रिएट कर सकती है जिसकी लैंग्वेज में क्या हो, सन की पावर और वार्मथ। सो दैट्स द एंड ऑफ योर ब्यूटीफुल पोएम. Hope you understand it well. Thank you for listening.